हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Hello guys, so today we have an RC in the daily dose, so करते हैं start. So the very first slide. For many years, the standard biological narrative has been centered on the individual organism as the primary unit of selection. We were taught that evolution is a fierce competition between discrete entities such as each driven by its own genetic blueprint. बहुत सालों तक बायोलॉजिकल नरेटिव या स्टोरी ये रही है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही प्राइमरी यूनिट होता है सिलेक्शन की. वी हैव बीन टोल्ड time and again that in evolution there's a fierce competition between different biological entities, discrete entities, मतलब organisms के बीच में आपस में survival के लिए competition होता है, and the survival depends on genetic blueprint. Okay, so there's a lot of competition when it comes to evolution. However, a radical paradigm shift is underway, spearheaded by the concept of holobiont. लेकिन ये जो पुराना कंसेप्ट है एवोल्यूशन के अंदर कंपटीशन का, ये अब शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, देयर इज अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट एंड दिस इज स्पीयरहेडेड और दिस इज लेड बाय अ कंसेप्ट कॉल्ड holobiont. This theory posits that a host and its associated microbial community, the microbiome, should be viewed as a single integrated evolutionary unit. Now this is something that is a departure from the old view, क्योंकि ओल्ड व्यू के अंदर ऑर्गेनिजम्स को आप अलग अलग डिस्क्रीट एंटिटीज मानते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? अकॉर्डिंग टू दिस न्यू थ्योरी, होस्ट मतलब जिसके अंदर माइक्रोबियल कम्युनिटी रह रही है, होस्ट और उसमें रहने वाली माइक्रोब्स या माइक्रोबियल कम्युनिटी को, विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोबायोम, शुड बी व्यूड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड unit. Okay, that means you don't have to differentiate between the microorganisms that live within the host. Okay, consider the host as well as the microbial community as a single unit. In this view, the hologenome consists of the collective genetic information of the host and all its symbiotic microorganism. इस व्यू के हिसाब से होलोजीनोम में सारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें होस्ट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आ गई और सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आ गई. दिस इजंट मियरली अ मैटर ऑफ सिमेंटिक्स, इट फंडामेंटली ऑल्टर्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, बिहेवियर एंड द वेरी मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टेशन. अभी जो न्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हमारी हेल्थ, बिहेवियर और मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है. The human body, for instance, is home to trillions of microbes that outnumber our own cells. Human body में, for example, trillions of microbes रहते हैं और इन microbes का जो नंबर है वो एक्चुअली हमारे खुद के सेल से भी ज़्यादा है. These aren't just passive hitchhikers, they are active participants in our physiology. Author is saying कि ये सिर्फ passive entities नहीं है हमारे body के within, बल्कि हमारे body के functions के अंदर ये participate करते हैं. They are active participants. They synthesize vitamins, train our immune system and even influence our neurochemistry through the gut-brain axis. So जो microorganisms हैं ये सारे रोल प्ले करते हैं जो यहाँ पे गिवन है. Okay, the synthesis of vitamins, immune system को ट्रेन करना एंड हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री को भी इफेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना थ्रू समथिंग कॉल्ड एज gut-brain axis. From the perspective of the hologenome theory, the rapid evolution of these microbial partners allows the holobiont to adapt to environmental changes much faster than the host own genome would permit. अब इसका फायदा क्या होता है? माइक्रोबियल पार्टनर्स की वजह से जो होलोबायोंट है, ओके, होलोबायोंट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द माइक्रोबियल पार्टनर्स. जो होलोबायोंट है वो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा जल्दी, फास्टर अडेप्टेशन कर पाता है एज कम्पेयर टू कि अगर उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. ठीक है, सो इट हेल्प्स यू टू अडेप्ट क्विकर टू दी
to the environment. If a population of animals moves to a new environment with flexible food sources, the gut microbiome can shift within days to optimize energy extraction. अगर एनिमल्स की पॉपुलेशन किसी नए एनवायरनमेंट में जाती है और वहाँ पे एक अलग तरह का खाना उनको अवेलेबल होता है, सो जो गट माइक्रोबायोम है वो कुछ ही दिनों में शिफ्ट हो जाता है in order to maximize the energy extraction from the food, providing a flexible layer of inheritance that bridges the gap between slow genetic mutation and immediate survival needs. So ये basically एक ये जो चेंज है, ठीक है, ये बहुत स्लो चेंज नहीं होता जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन में होता है, बट स्टिल this is a change that takes care of the immediate survival needs. So you can actually see कि this is additional layer apart from the change that happens when your genetics change over a period of time, which is a slow process. Okay, so this is a mid stage, or you can say this is a flexible layer that lies between very slow genetic mutation and immediate survival needs. उसके बीच में कहीं पे ये lie करता है, ठीक है, मतलब आपका जो microbiome का shifting to optimize for energy extraction from the food. Okay, this lies somewhere in between. Critics of whole genome theory argue that it overcomplicates the traditional Darwinian model. अब जो लोग whole genome theory के against में हैं, जो उसके critics हैं, वो कहते हैं कि whole genome theory Darwinian model को ज़्यादा complicate कर देता है, over complicate करता है. They contend that the relationship between the host and its microbes is often transient and that the interest of the microbes may not always align with that of host. उनका कहना ये होता है कि रिलेशनशिप जो होस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और वो शॉर्ट लिव्ड होता है और ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोब्स का इंटरेस्ट हमेशा होस्ट के इंटरेस्ट का अलाइन करे. In classical evolutionary biology, for a group of organisms to be considered a single unit of selection, their reproductive fates must be strictly tied together. ओके, क्लासिकल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक सिंगल यूनिट ऑफ सिलेक्शन कंसिडर करना ही है तो उनकी रिप्रोडक्टिव रेट्स का एक साथ टाइड होना ज़रूरी है. इफ अ बैक्टीरियम कैन लीव वन होस्ट एंड कॉलोनाइज अनदर, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ होलोबायोंट. अगर कोई बैक्टीरिया एक होस्ट को छोड़ के दूसरी होस्ट में जाके कॉलोनी बना सकता है तो वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट हुआ, ना कि होलोबायोंट. Proponents, however, counter that many of these microbial relationships are vertically transmitted, passed on from parent to offspring, ensuring a shared evolutionary trajectory. हालांकि होलोबायोंट थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना ये है कि जो माइक्रोबियल रिलेशनशिप है, दैट मीन्स होस्ट और उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है. दैट मीन्स कि पेरेंट्स अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑफस्प्रिंग्स में पास करते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो कि उनका एक शेयर्ड एवोल्यूशनरी ट्रेजेक्ट्री बन जाता है. ओके, वो फिर अपने आगे के ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन करेंगे इस तरीके से. दे पॉइंट टू इंस्टेंसेस वेयर सर्टेन इंसेक्ट्स कैन नॉट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस विदाउट स्पेसिफिक बैक्टीरिया हाउस्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, a level of integration that blurs the line between two species and creates a singular fitness landscape. ओके, सपोर्टर्स ऑफ होलोबायोंट थ्योरी इस चीज़ को भी पॉइंट आउट करते हैं कि कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया. ओके, सो ये एक इस तरीके का इंटीग्रेशन है जिसमें आप ये मान सकते हो कि दोनों स्पीशीज़ आपस में साथ में ही काम कर पाती हैं ना. सो होलोबायोंट थ्योरी के क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी हैं. वो कहते हैं कि भाई सिंगल यूनिट कैसे हुई. ओके, यू हैव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया being a standalone separate agent, okay, independent agent. जबकि जो होलोबायोंट के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, they give examples where they talk about the vertical transmission of these microorganisms from parent to offspring, and in that manner they also give the example of insect. Okay, the shift towards multi-species agency challenges the Western philosophical tradition of the autonomous individual. ये जो मल्टी स्पीशीज एजेंसी वाला जो कंसेप्ट है, ये वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन के अंदर ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वाले कंसेप्ट को चैलेंज करता है. इफ आवर थॉट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेटाबोलाइट्स ऑफ लैक्टोबैसिलस इन आवर गट, अगर हमारी सोच जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसके मेटाबोलाइट से अफेक्ट होती है, वेयर डज द सेल्फ एंड द अदर बिगिन.
तो फिर सेल्फ कहाँ ख़त्म होगा और अदर कहाँ बिगिन होगा, क्योंकि आपके ऊपर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपका ऑटोनोमस टेरिटरी कहाँ तक है. द इम्प्लीकेशन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज. द इम्प्लीकेशंस फॉर मेडिसिन आर इक्वली प्रोफाउंड. The implications are very deep, okay, in terms of medication. Instead of attacking germs with broad spectrum antibiotics, a scorched earth policy that decimates the holobionts internal ecosystem, future therapies may focus on precision editing of the microbiome to restore symbiotic balance. तो अभी तक का जो हमारा तरीका होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करने का, ओके, हार्मफुल बैक्टीरिया को डील करने का, वो एंटीबायोटिक्स देने का होता है. लेकिन एंटीबायोटिक्स तो सबको किल कर देंगी, तो दैट्स द स्क्वॉश्ड अर्थ पॉलिसी. ठीक है, अभी वो पुरानी वाले से हम लोग फिर शिफ्ट करेंगे किस पे, एक ऐसे थेरेपी पे जो प्रिसीजन एडिटिंग करेगा और माइक्रोबायोम के अंदर एक बैलेंस को रिस्टोर करेगा. विच मीन्स कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना बॉडी का पार्ट मान लें, राइट, तो उस हिसाब से तो फिर हमारी पुरानी जो सिस्टम है एंटीबायोटिक्स वाली, दैट वुड नॉट बी अ वेरी गुड way to deal with germs. Okay, we would have to go in for something called as precision targeting to restore balance in the gut, okay, in the microbiome, right. We are beginning to see the body not as fortress to be defended, but a complex teeming garden that requires careful cultivation. अब हम देखने लग गए हैं अपने बॉडी को एक किले की तरह नहीं जिसको हम डिफेंड करते हैं, बल्कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स गार्डन जिसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्टीवेट होते हैं ना. तो दैट इज व्हाई ही सेज दैट रिक्वायर केयरफुल कल्टीवेशन. दैट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टेक केयर करना, सो दैट वी आर एबल टू ग्रो अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. The holobiont reminds us that independence is a biological fiction. We have always been an assembly, a collective negotiation its way through an interconnected world. Okay, so उस हिसाब से देखा जाए तो holobiont हमें रिमाइंड करता है कि टोटल इंडिपेंडेंस तो एक बायोलॉजिकल फिक्शन की तरह है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन connected. Okay, we have always been like a collective unit which works along with the microorganisms. Okay, so let's look at the first question. Which of the following best captures the author's primary objective in the passage? To advocate for a transition from an individual-centric evolutionary model to a collective framework that incorporates symbiotic genetic data. Okay, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग इंडिविजुअल सेंट्रिक मॉडल से मूव करें एक कलेक्टिव फ्रेमवर्क की तरफ, जहाँ पे सिम्बायोटिक जेनेटिक डेटा को भी इम्पोर्टेंस मिलती है. दैट मीन्स वी आर नॉट independent standalone entities, but like we work along with a lot of those microbes, so unko bhi hum incorporate kare. So this is a decent option. Okay, nothing wrong in this. To demonstrate that the human microbiome's ability to influence neurochemistry effectively negates the concept of individual free will. There is no negation of individual free will. Okay, third, to critique the classical Darwinian model for its inability to account for the vertical transmission of microbial genetic material in insects. See, पैसेज का मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप डार्विनियन मॉडल को क्रिटिसाइज करो, और वो भी इस चीज़ के लिए कि डार्विनियन मॉडल वर्टिकल ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ऑब्वियसली आवर पैसेज इज नॉट फोकस्ड ऑन वर्टिकल ट्रांसमिशन और क्रिटिकिंग द डार्विनियन मॉडल. टू प्रोवाइड अ डेफिनेटिव रेजोल्यूशन टू द डिबेट बिटवीन प्रोपोनेंट्स ऑफ होलोजीनोम थ्योरी एंड ट्रेडिशनल एवोल्यूशनल बायोलॉजिस्ट. ओके, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिबेट का. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द आंसर इज ए ऑप्शन. According to the passage, the flexibility of holobiont in a new environment is primarily a result of. holobiont flexible क्यों होता है नए environment में? ठीक है, first option, the host ability to undergo rapid genetic mutation in response to dietary shifts. See, genetic mutations तो बहुत long frame of time पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि holobiont के अंदर बहुत rapid genetic mutations होते हैं जिसकी वजह से वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाता है. एक्चुअली उसने क्या बोला था कि जो आपका माइक्रोबायोम होता है, वो माइक्रोबायोम फूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो फूड जैसे ही चेंज होगा तो वैसे ही माइक्रोबायोम चेंज हो जाएगा, एंड देन इट अलाउज यू टू एडजस्ट इन द न्यू सिचुएशन. ठीक है,
So second option, the accelerated rate of change within the microbial genome compared to the host genome. Okay, अब इसका देखो रीजन क्या है. होस्ट का जीनोम तो इतनी फास्ट चेंज हो नहीं सकता, लेकिन माइक्रोबियल जीनोम जो है एज पर दी पैसेज वो फास्ट चेंज हो पाता है, बिकॉज जैसे ही फूड चेंज होता है तो माइक्रोबायोम उसके रिस्पॉन्स में अपने आप चेंज हो जाता है. ठीक है, एंड ऑथर सेड कि ये एक नई लेयर है, ठीक है, बिटवीन दी extreme of genetic mutation which is slow and an immediate survival need. Look at this. If a population of animals moves to a new environment with different food sources, the gut microbiome can shift within days to optimize energy extraction, providing a flexible layer of inheritance that bridges the gap between slow genetic mutation and immediate survival needs. Okay, so this is your second option. The decoupling of reproductive fates of host and symbiotic microorganism, ये तो उल्टा ही हो गया. Decoupling का मतलब तो ये हुआ कि फिर तो holobiont वाली थ्योरी क्वेश्चन में आ जाएगी. ठीक है, decoupling is like separation. The host immune system being trained to prioritize new energy extraction methods. Immune system is not meant for energy extraction. Okay. The energy extraction wala aspect was connected with the microbiome, right? Okay, and the microbiome can change according to the availability of the food and the environment. Okay, so that is second option. Which of the following, if true, would most significantly weaken the argument of the critics mentioned in the third paragraph? Okay, critics के argument को weaken करना है, third paragraph को पढ़ते हैं. Critics of hologenome theory argue that it overcomplicates the traditional Darwinian model. They contend that the relationship between host and its microbiomes is often transient and thus the interests of the microbes may not always align with those of the host. So critics का ये कहना है कि जो होस्ट और उसके माइक्रोब्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप ट्रांजिएंट होती है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, और ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोब्स के फ़ायदे में जो है वही होस्ट के फ़ायदे में भी हो. ठीक है, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लासिकल बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग these are different entities. फिर अगर और हम आगे पढ़ते हैं तो it says that if they are actually together, okay, their reproductive fates should be tied together, right? अगर बैक्टीरिया एक होस्ट को छोड़ के दूसरी जगह पे कॉलोनाइज कर सकता है, that means कि they are not a single entity, they are not a part of holobiont, right? Okay, so this is the challenge कि होस्ट और माइक्रोब्स के बीच की रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होती. ठीक है, एंड इनके इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं हमेशा अलाइन करे, और इनके रिप्रोडक्टिव फेट्स भी टाइड टुगेदर नहीं है, तो हाउ कैन दे बी अ सिंगल एंटिटी? ओके, सो लेट्स ट्राई टू वीकन दिस. मोस्ट बैक्टीरिया फाउंड in human gut are also found in soil and water sources in the host environment. ज़्यादातर बैक्टीरिया जो ह्यूमन गट में पाए जाते हैं वो सॉइल में भी पाए जाते हैं और वाटर सोर्सेज ऑफ होस्ट एनवायरनमेंट भी पाए जाते हैं. ओके, सो हाउ वुड इट वीकन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्रिटिक्स? ओके, नो. ओके, इट जस्ट प्रूव्स दैट कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन गट एंड वाटर एंड सॉइल. High throughput sequencing reveals that the majority of host essential microbes are acquired through lateral gene transfer from non-relatives. Okay, now ये तो in fact मतलब see, आपने यहाँ पे कहा था कि जो reproductive fate है वो tied together होना चाहिए, right? And it implies कि जो होस्ट है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है उनके बीच में एक अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट? नाउ इफ आई लुक एट द वीकनिंग वाला पार्ट, ओके, वीकनिंग वाले पार्ट में हमें मेनली कोई एक ऐसी एंटिटी चाहिए, कोई एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे हम ये प्रूव कर पाएँ कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेस्ट एंड देयर अलाइनमेंट with the host organism is not permanent. Okay, so the moment I prove that, then the original argument would be weakened. Okay, so lateral gene transfer non-relative से होता है, मतलब like again this is not going to weaken the argument. Let's look at the C option. Okay, C option says longitudinal studies show that the core functional microbiome of a species remain consistent across generations despite varying external
एनवायरमेंट्स। ओके, सो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैं कह रहा हूँ कि कोर फंक्शनल माइक्रोबायोम स्पीशीज का कंसिस्टेंट रहता है डिस्पाइट चेंजिंग एनवायरमेंट्स। नाउ दिस इज एन ऑप्शन दैट वुड एक्चुअली वीकन द आर्गुमेंट ऑफ द क्रिटिक्स, क्योंकि क्रिटिक्स क्या कह रहे थे कि दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा भी हो, जो फंक्शनल माइक्रोबायोम है स्पीशीज का वो सेम ही रहता है। दैट मीन्स कि वो पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, और पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड देन सो ऑन, और उनके रिप्रोडक्टिव इंटरेस्ट अलाइंड है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू वीकन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्रिटिक्स, क्योंकि क्रिटिक्स इसके जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं कि इनके रिप्रोडक्टिव इंटरेस्ट अलाइंड नहीं है, प्लस इनके मतलब इनका साथ में रहने का जो इंटरेस्ट है वो भी अलाइंड नहीं है। सो दिस इज लाइक one of the options that supporters will use, okay, and obviously this is the strongest option that would actually weaken the critics का argument, है ना। तो critics इसके against में बोल रहे थे, ये hollow bind theory के support में जा रहा है, right? So C option, the interest of gut bacteria in certain primates have been observed to lead to host behavior that decrease the host overall lifespan. Again, lifespan is not my concern here, okay. Okay, C option is the answer. The author uses the metaphor of teeming garden to imply that body should be viewed as. अब teeming garden का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपस में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। A resource to be exploited by various biological agents. Okay, now this is a negative term. Exploited. Okay, teeming garden एक पॉजिटिव सेंस में आपने बात बोली है, जैसे कि होस्ट का जो गट का जो माइक्रोबायोम होता है तो उसमें अलग अलग वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। तो व्हाई वुड आई से दैट इट्स अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड by biological agents? A static environment that requires external protection from invasive species. There is no angle of invasive species, okay, and there is no static environment, okay. Invasive species तो ऐसी species होती है जो नुकसान करती हैं, बाहर से आ रही हैं, so this is obviously wrong. A site of competition where only the fittest microbes survive. Again the same thing. अगर मैं कह रहा हूँ कि टीमिंग गार्डन है दैट मीन्स वेराइटी है, तो वेराइटी के लिए तो लाइक यू हैव सम ऑप्शन कि जहाँ पे मेरे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होस्ट के साथ रिलेशनशिप बना के एक जगह पे रह रहे हैं, ओके। सो बेस्ट ऑप्शन इज अ डायनामिक constantly changing ecosystem requiring management of its internal symbiotic relationships. Symbiotic relationships का मतलब एक से ज़्यादा symbiotic relationships जो host की body के अंदर हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वुड फिट द टर्म टीमिंग गार्डन, राइट। सो द आंसर इज डी फॉर दिल्ली।